ठीक ठाक ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੌਣੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Today I am here with an important vlog. This vlog is highly important, valuable, emotional and heart touchable. So this vlog is totally relating to poverty. I am here to explain that why poverty is like a hard nut to crack, why poor are unable to obtain good diet twice or thrice a day. No doubt they are struggling hard throughout the day. They go to their jobs, they go for laborings, they go for obtaining a little amount of incomes, but they are not as much as prosperous. They are not mentally satisfied. They have no peace of mind because inflation is ruling over their life. They are slaves in the hands of poverty. They are in the grip of multifarious challenges. So life is a challenge for them. Life is not a bed of roses for them. In fact, life is like a bed of thorns for such peoples. In fact, it is correct to say that कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कभी भूल हुई है. The name of this uncle is Uncle Salamat Ali. He is doing rest while laying. So सुल्तान जमूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो. जिस खेत के दहका को मयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदम को जला दो. क्यों खाले को मखलूक में हैल रहे पर्दे, पिराने कलीसा को कलीसा से उठा दो. So ladies and gentlemen, it is correct to say that age of all these uncle is not to do such a hard works. Their age is to take rest, to stay at their homes. This uncle was saying to me 1 or 2 days before when I meet to this uncle, he said to me कि क्यों हमको सुनाते हो जहन्नम के फसाने, इस दौर में जीने की सज़ा कम तो नहीं है. Ladies and gentlemen, this child man is also doing hard work. This age is not to do such a hard work. This age is to play, to go to schools. This is the reason due to which child labor has been increasing with every passing day, and one of the most responsible factor for child labors in Pakistan is poverty, unemployment and lack of capitals. The parents, they have no such resources, they have no money to send their children to schools, and some parents consider that education is a fruitless because they expect if they would be graduated, if they would be obtain matriculation education or intermediates, how their sons would be able to obtain jobs in Pakistan, because this era is a era of favoritism, nepotisms and political reference जो है वो matters करते हैं जॉब के क्राइटेरियाज में. तो this is highly painful pictures in front of me. It is rightly to say that भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पाँव, रिज़्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है. No doubt, ladies and gentlemen, there are many responsible factors due to which poverty is increasing with every passing day. For example,
यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है। रिसेंटली आई वॉज टू बी इन्फॉर्म दैट दिस अंकल इज़ आल्सो एन old man, and along with old man he is disabled, as one can observe clearly that he is disabled and doing hard works. This old man is highly appreciable. I salute to his efforts. He prefer to do hard works comparatively to do beggings. Second reason of poverty is corruption है इस मुल्क के अंदर। Then तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये अंकल हैं, इनसे पूछते हैं कि गुर्बत की वजूहात क्या हैं। व्हाट आर द काजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन ऑल डेवलपिंग कंट्री एंड स्पेशली इन पाकिस्तान। अंकल, ये गुर्बत की वजह की मसला? जो भी यहाँ हुक्मरान आता है वो करप्शन करके निकल जाता है और फिर दोबारा करप्शन करने के लिए आ जाता है जी। तो गुरबत की जी ज़्यादा वजह हैगी अपने आबादी ज़्यादा है, गुरबत की वजह इस वजह ना गुरबत ज़्यादा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस अंकल मैन आल्सो सेइंग दैट करप्शन है, आबादी में इजाफा है। दूसरा मैं कहता हूँ कि जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है वो ये है कि यहाँ स्किल की कमी है, टेक्निक्स की कमी है। पाकिस्तान इज़ नॉट टोटली अ स्किल्ड कंट्री, इट इज़ नॉट अ टोटली साइंटिफिकली और दिस यू मे नॉट से दैट पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ टू मच प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वी आर लैकिंग इन दिस फील्ड। Need of ours is that we must promote skills in our children in order to kick back, in order to remove the poverty. दूसरा, हमें अगर पॉवर्टी को ख़त्म करना है तो हमें जो ये ज़कात सिस्टम है, ये जो पेंशन है, तोहफ़े ताइफ हैं, सदक़ात हैं, इन सारी चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा और हमें ये बताना होगा कि मुफलिस के बदन को भी चादर की ज़रूरत है। अब खोल के मज़ारों पे ये ऐलान किया जाए। अब देखें, ये लोग ड्यू टू इलिट्रेसी मज़ारों के ऊपर पैसे गले भर दिए जाते हैं, चादरें चढ़ा दी जाती हैं, लेकिन जिंदा जो लोग हैं उनको कोई पूछता ही नहीं जहाँ ज़रूरत है। और नो डिनाइंग द फैक्ट, यहाँ हकीकत में हम बाज़ औक़ात बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम्स हैं, फिर लोगों की जो फैलाई बातें हैं वो एडवांस में कह देते हैं। ये एक दो दिन गुजरने के बाद कि रोटी, बादल और चांद पर अल्लाह नज़र आ जाता है मगर ज़मीन पर अल्लाह के बंदे नज़र नहीं आते। होना तो ये चाहिए कि खुदा के बंदे तो हैं, हज़ारों बंदों में फिरते मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार है। यूं ही है इबादत, यूं ही है दीनो ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज़ होप, करेज एंड कॉन्फिडेंस। लेट अस मोबिलाइज ऑल आवर रिसोर्सेज इन अ सिस्टमैटिक वे एंड ऑर्गेनाइज ऑल द issues with a grim determinations and discipline worthy of great nation. This is where we needs to go. इस सारी सिचुएशन को लेडीज़ एंड जेंटलमैन देख के मुझे हबीब जालिब का ये शेर जो है ज़हन में याद आ गया है कि ए चाँद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर, जहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं, है यहाँ पर कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है, वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है, ये देश से अंधे लोगों का, ए चाँद यहाँ ना निकला कर। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आई डू होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।